that's very unfair comment. In any kind of this kind of huge gathering, that too religious gathering, I think the problem with our approach in our leadership is it's very easy to comment on Sanatan Dharma or Hindu Dharma. They don't do the same level of this kind of criticism for any other religion. And this kind of approach always we have an issue. And they don't realize that they're hurting the sentiments of crores of people. And it is not like mismanagement. Because lakhs of people coming together itself is the biggest task, and that too for going on for more than 50 days is the toughest challenge for any government. Opportunity for all of us. And that too, this nation, maybe we are divided, we might be of different language, different cultural thing, but as a dharma, we are all one. And that's what Mahakumbh, this kind of situation is. मैं बहुत योगी जी सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। महाकुंभ जिसमें अब सिर्फ 8 दिन बाकी रह गए हैं, वीआईपी से लेकर आम श्रद्धालुओं का सैलाब संगम नगरी प्रयागराज में उमड़ रहा है। लेकिन महाकुंभ पर कुछ राजनीतिक चेहरे पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव हो जो कुंभ पर लगातार राजनीति कर रहे हैं, या फिर लालू यादव हो जो कुंभ को फालतू की चीज बता रहे हैं। और अब बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तो इनसे भी 4 कदम आगे निकली और वो महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बता रही हैं। तो इस तरीके से इंडी अलायंस का एजेंडा क्या है, ये साफ तौर पर देश और दुनिया के सामने है कि वो कितने बड़े सनातन विरोधी हैं। ये साफ तौर पर बीजेपी का पलटवार जो है इन राजनीतिक दलों पर हो रहा है। लेकिन अब इसी कड़ी में साउथ के सुपरस्टार और आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण भी प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचे, जहां उन्होंने स्नान किया और इसके बाद जब मीडिया से बातचीत की तो दिल खोलकर सीएम योगी की तारीफ की। जिस तरीके से इस महाकुंभ का भव्य आयोजन किया गया है, इसको लेकर उन्होंने सीएम योगी को धन्यवाद कहा, तो वहीं पर विपक्षियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। पवन कल्याण से जब ममता बनर्जी के हाल ही में महाकुंभ पर दिए गए बयान को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि यह टिप्पणी बिल्कुल गलत है। सनातन धर्म हिंदू धर्म पर टिप्पणी करना बहुत आसान है, वो किसी अन्य धर्म के लिए ये समान स्तर की टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। तो हमें इस तरह के दृष्टिकोण से कोई समस्या है, उन्हें एहसास नहीं है कि वो करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी बात पवन कल्याण के जरिए कही गई है और किस तरीके से उन्होंने ममता बनर्जी पर पलटवार किया और कहा कि क्या ममता बनर्जी के राज्य या किसी अन्य राज्य में इस तरीके का प्रबंध हो सकता है, क्या इस तरीके से जो है काम हो सकता है, इस तरीके का प्रबंध हो सकता है, क्या कुछ उन्होंने कहा है और किस तरीके से ममता बनर्जी की इस टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है, जरा सुनिए। has turned into Mrityu Kumbh. There's mismanagement. How do you see this? What do you want to say on that? I think that's very unfair comment. In any kind of this kind of huge gathering, that too religious gathering, I think the problem with our approach in our leadership is it's very easy to comment on Sanatan Dharma or Hindu Dharma. They don't do the same level of this kind of criticism for any other religion. And this kind of approach always we have an issue. And they don't realize that they're hurting the sentiments of crores of people. And it is not like mismanagement. Because lakhs of people coming together itself is the biggest task, and that too for going on for more than 50 days is the toughest challenge for any government. And even if it happens in West Bengal, if it happens in any other state, it is going to be a tough job. Even a simple political gathering itself will have some issues. And that too, having such a continuous gathering for more than 50 days, close to 50 days, and it is going on like this. And it is not that we want bad things to happen, unfortunate incidents to happen, but we wish, I think Yogi ji Sarkar is doing an excellent job, and it is unfortunate such events happen. And I urge
And I plead all the leaders of such immense experience to restrain their comments. I think this is not the right way to comment. I think I plead them not to get into such kind of remarks, which hurts everyone, because they don't do the same thing for any other religion. That's the reason I think they have to withhold that comment. She slams central government as well as UP BJP's government. I think these kind of situations, in this kind of unfortunate incidents, I think one should not be confined to government. We have to go beyond it. I think this is very unfair. I had heard about from other leaders also. Things do happen. For example, in Tirupati, in Tirumala also, a few incidents happen, and huge gatherings come. No matter how police personnel do their best job and administration does best job, some untoward, unfortunate incidents, we don't want it to happen, but if it happens, imagine for the last 40-45 days, it's going to finish in 26th Mahashivratri day, and 50 crore people came till now, and that is a humongous success we have to consider. And we wish and we pray God not such kind of incidents should happen. And I urge all the senior political leaders, their experience, they are the helm of their affairs, and I think they should think before they speak, and they think before comment in this way. I think it hurts a lot of them. I urge to restrain from such comments. तो आपने आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण को सुना, जो ये कह रहे हैं कि जरूरी है कि सभी नेता अपनी टिप्पणियों पर लगाम लगाएं, क्योंकि इस तरीके के भव्य आयोजन का इंतजाम करना ही बहुत मुश्किल काम है। ये एक बहुत टफ टास्क है, ये पवन कल्याण कह रहे हैं। और सब जानते हैं कि पवन कल्याण साउथ के सुपरस्टार में गिने जाते हैं, डिप्टी सीएम है आंध्र प्रदेश के, और किस तरीके के कट्टर जो है सनातनी हिंदू वो खुद को बताते हैं, बार बार उसकी बात भी वो करते हैं। और जब वो महाकुंभ पहुंचे तो वहां पर भी उन्होंने सीएम योगी की तारीफ की। महाकुंभ में जो इंतजाम किए गए हैं, जिस तरीके से वहां पर प्रबंधन किया गया है, जिस तरीके से प्रशासन वहां पर काम कर रहा है, उसको लेकर उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि हमारी भाषा और संस्कृति अलग अलग हो सकती है, लेकिन हमारा धर्म एक है। महाकुंभ के इस आयोजन के लिए योगी सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं। आधे से ज्यादा भारत यहां महाकुंभ पहुंच रहा है, ये सदियों से चल रहा है। हमारे धर्म की निरंतरता अद्भुत है। ये बातें पवन कल्याण ने कही, और क्या कुछ सीएम योगी की तारीफ में उन्होंने कहा, जरा सुनिए। Opportunity for all of us, and that too this nation, maybe we are divided, we might be of different language, different cultural thing, but as a dharma we are all one, and that's what Mahakumbh this kind of situation shows. मैं बहुत योगी जी सरकार को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, एंड बहुत मैं अदृष्टशाली हूँ इधर आखिर मैं कुंभ के आने के लिए। आई एम वेरी एक्सट्रीमली ग्रेटफुल, एंड बाद में मैं What do you like most about Kumbh? Like akhadas, holy day, Ganga Ji? It is about, imagine more than half of India coming here and believing in it, and it's been going on for centuries. Okay. And the continuity of our legacy, the continuity of our dharma is stunning and amazing. Okay. When I was मैं 16-17 साल था, मैं एक योगी आत्मकथा पढ़ लिया मैंने। पढ़ने के टाइम पे मैं महाकुंभ के कुंभ के बारे में मैं सुन ले पाई, समझ गया मैं क्या क्या है उसमें। एंड आफ्टर दैट अगेन it's been my great desire to be here for many decades, last 3 decades. In between 1 or 2 came, but I never had the opportunity. Finally, I think sages. What makes me interesting is all the universal energies, sages, siddhas, and yogis, and all from people from different sects of our dharma come together. It is not about confluence of rivers; it's about confluence of all our traditions as one. And numbers of devotees coming from south. And what do you want to say about to your fans, and what do you want to say the devotees coming from south? Personally, there is no such thing as for me only one message for south, one message. Okay. This is for entire Bharat. Yes.
and we are all one. This India is run by one Atma. This kind of Mahakumbh reflects that. A bit in Telugu, sir, if possible. One line for that. ఈ మహాకుంభ్ అనేది ఇది మనకి ప్రత్యేకించి ఇది మన విభిన్నమైన భాషలు కావచ్చు, రాష్ట్రాలు కావచ్చు, కానీ భారతదేశపు ఆత్మ ఒకటి అనేది తెలియజేస్తుంది. అలాగే ప్రత్యేకించి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ యోగి ఆదిత్యనాథ్ గారి సర్కార్కి, ప్రభుత్వానికి నా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ ప్రత్యేకత ఉత్తరం, దక్షిణం, పశ్చిమం, తూర్పని కాదు. మన భారతీయత అనేది సనాతన సాంప్రదాయం, అనాదిగా మనందరం కలుస్తూ వచ్చాం. ఇది ఇంకొకసారి ఇలాంటి సందర్భాలు మరింత బలోపేతం చేస్తాయి. దాంట్లో భాగంగా అందరికీ క్షేమంగా మీరు మహాకుంభంలో పాల్గొని క్షేమంగా ఇంటికి వెళ్ళాలని మనస్ఫూర్తిగా. तो एक तरफ तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा में दरअसल सीएम योगी जो है समाजवादियों पर जमकर बरसे, वो खबर हमने आपको बताई। लेकिन उसके बाद जब पवन कल्याण महाकुंभ में पहुंचे तो उन्होंने भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी विपक्षियों को जवाब देने में और ये बताने में कि जो कहीं न कहीं देश को जाति धर्म के आधार पर बांटते हैं, वो दरअसल किस तरीके की राजनीति देश में कर रहे हैं, किस तरीके से उनके मन में कट्टरता भरी हुई है हिंदू धर्म के प्रति, किस तरीके से वो दूसरे धर्म पर इस तरीके की टिप्पणी नहीं करते हैं जितना वो आसानी से हिंदू और सनातन धर्म पर टिप्पणी करते हैं। ये तमाम बातें उन्होंने कही क्योंकि आज हमने वो तस्वीर भी देखी कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेताओं ने विधानसभा के बाहर महाकुंभ में बद इंतजामी को लेकर योगी सरकार पर हमलावर हो नजर आए। आरोप न जाने कितने और क्या क्या लगाए गए, लेकिन अब तक लगभग 50 करोड़ से भी ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो संगम नगरी प्रयागराज में इस महाकुंभ में पहुंच चुके हैं, वहां पर डुबकी लगा चुके हैं और ये भीड़ थम नहीं रही है। अब सिर्फ कुछ ही दिन जो है महाकुंभ के बाकी रह गए हैं, लेकिन लगातार ये सिलसिला जारी है। सड़कों पर चाहे श्रद्धालुओं का जन सैलाब हो, चाहे रेंगती गाड़ियां हो, चाहे वो संगम तट जो कि नाव से कहीं न कहीं पटा पड़ा है, जिस तरीके का जाम वहां पर लगा हुआ है, तो कुल मिलाकर ये जो आस्था लोगों की है इस पर कहीं ना कहीं ये प्रहार कर रहे हैं विपक्ष के नेता, आस्था को लोगों की ठेस पहुंचा रहे हैं विपक्ष के नेता। ये भी पवन कल्याण की ओर से कहा गया है और लगातार बीजेपी के नेता भी कुछ इसी तरीके से जवाब देते हुए, खासतौर पर समाजवादी पार्टी के नेताओं से लेकर अखिलेश यादव जो हर रोज न जाने कुंभ के इंतजाम को लेकर कितने ट्वीट कर रहे हैं, योगी सरकार, मोदी सरकार को घेरने के लिए न जाने कौन कौन सी कहानियां गढ़ रहे हैं, तो वहीं पर लालू प्रसाद यादव तो महाकुंभ को फालतू की चीज बता चुके हैं और अब इससे भी कई कदम आगे बढ़ते हुए ममता बनर्जी, जिनको सब जानते हैं कि किस तरीके से तुष्टीकरण की वो राजनीति करती है, वर्ग विशेष का उन्हें वोट बैंक चाहिए, उनके लिए ही वो काम करती हैं, उनके लिए ही वो इंतजाम करती हैं, उनके लिए ही वो छुट्टियां जो है राज्य में घोषित करती हैं, तो कहीं ना कहीं वो सनातन पर इस तरीके का प्रहार कर रही हैं। लेकिन इसका जवाब क्या होगा, ये आने वाले वक्त में देखना होगा कि किस तरीके से जो इतनी बड़ी तादाद में महाकुंभ में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, वो इन विपक्षियों को किस तरीके का जवाब देते हैं। ये जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में जो भी चुनावी मुकाबले होंगे उसमें कहीं ना कहीं देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।